Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Over the past few weeks or the past few months in particular, we have seen that Pakistan in particular has gone through extremely hard economic times. Okay? वैसे तो this has been going on ever since we were created, right? यानी Pakistan has been going through hard times, but particularly so पिछले चंद हफ्तों में and पिछले साल में खसूसन, ठीक है, मुश्किल दर मुश्किल जो है ना चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, to the extent that honestly speaking, I think every person in society is impacted by it. No matter what your wealth statement is, what you do, what age you are in, it is become so obvious, right, कि हर शख्स जो है इससे impact हो रहा होता है. And also the fact that impact का सिर्फ ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि मेरे घर में राशन आ रहा है, मुझे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा. हो सकता है कि हम यहाँ जितने बैठे हैं सबको अभी भी 2 टाइम रोटी अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया हो रही है. But it also sort of adds to the hopelessness when we think about the future, right, that we are all surrounded by. And हमारा दीन एक ऐसा दीन है जो हर सतह से मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की बात करता है. So tonight we thought that we should speak about this notion particularly, that how is the concept of rizq viewed down in our deen, and I think in light of the Quran and Hadith it can act as a great reminder for all of us. Dr. Sahab, आप इधर आ जाएं please. I would request कि आप इधर आ जाएं. So the first thing that I want to begin by is this, that the concept of rizq in our deen is extremely a unique concept, right? Why? Because on the one hand, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and Hadith is telling us what? That हमारा जो rizq है, it has been ordained for us. हमारा रिस्क हमें हमारे लिए तय कर दिया गया है, लिख दिया गया है, मुकर्रर कर दिया गया है. इस पे दीगर आयात और कुरान की जो है ना क्या कहते हैं हदीसें भी जो है इस पे इस्तिदलाल करती हैं. In fact, the ayat of the Quran that I just recited to you, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, that your risk is in the skies, and it is that which has been promised for you, right? 51st surah, 22nd verse. ये एक notion है. In fact, there is a very famous Arabic proverb that says إِلَّمْ تَعْرِفْ उन्वान रिस्क, right? That if you don't know the address of your risk, कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिस्क किधर है, फला तखफ, right? Don't be scared. فإنه يعرف उन्वानक, ठीक है, कि your risk knows your address, which basically means what? कि आपका रिस्क आप तक पहुंच जाएगा. So on the one hand, this is something that हम अपनी दीनी मजालिस में माँ बाप से conversations में कहीं ना कहीं ज़रूर सुनते आए हैं कि हमारा रिस्क लिख दिया गया है, वो हमें मिलेगा जितना का मिलना है. But on the other hand, हमें ये भी बताया जाता है कि we cannot be complacent about it. ऐसा नहीं है कि अगर रिस्क लिख दिया गया है तो हमने कुछ करना नहीं है. We are told in the deen that we have to work hard, we have to make use of asbab, right? And उस असबाब को यूज़ करना, एफर्ट करना, ये सही तरीका है. But what I want to talk about today in particular, ठीक है, for most part of the talk, is the fact that what is it that we think of when we think of a sabab of risk, right? So जब मैं कहता हूँ कि असबाब का इस्तेमाल करना है रिस्क में, तो 2 तरह के असबाब हैं. एक सबब वो है कि मैं और आप जो भी हमारा स्किल सेट है, हमारा पेशा है, हमारा काम है, हम उसको सबब के ज़ुमरे में सोचते हैं और उसके मुताबिक हम फैसला करना शुरू हो जाते हैं. तो एक असबाब और सबब की जो डेफिनेशन है वो ये है, तो अगर कोई शख्स कारोबारी है तो उसको पता है कि यार मुझे अपने कारोबार में फोकस करना है, अपनी क्या कहते हैं प्रोडक्शन को बेहतर करना है, सेल्स को बेहतर करना है. कोई शख्स जॉब कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने, ओवर टाइम लेना है, उसको मेहनत करनी है. कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट है, तो वो इससे कोई इनकार नहीं. बट सबब का एक और मानी भी है, और ये जो असबाब है ना जो मैं आपसे जिनके बारे में बात करूँगा, ये वो असबाब हैं, गौर से सुनिएगा, जिसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. यानी हमारे उर्फ में पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा दोनों के लिए ये मुहैया है, जिसके लिए किसी स्किल सेट की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए एक्चुअली आपको किसी उम्र की कोई कैद नहीं है. ये असबाब अल्लाह ताला ने यूनिवर्सली हर शख्स को मुहैया की हैं रिस्क हासिल करने के लिए. क्योंकि देखो हमारे माशरे में आज पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं दुनिया के एतबार से, असरी तालीम के एतबार से.
तो पढ़े लिखे लोगों की जनरली जो है असबाब और जॉब्स में टैप इन करने का नोशन मुख्तलिफ है कंपेयर टू उन लोगों के जिनके पास कोई तालीम नहीं। बट ये असबाब अल्लाह ताला ने, ठीक है, ऐसे रखे हैं जो हर शख्स को मुहैया है। एंड आज बुनियादी तौर पे, एंड ये मैं मुल्की सतह और सियासत की बात नहीं आपसे करने लगा, वो एक अलग मौजू है, आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, बट मेरा और आपका रिस्क अगर अल्लाह से टाइड है ना, तो आज हम पर जो परेशानी आई हुई है, तो बुनियादी तौर पे ये चंद चीज़ें हैं जिनको हम भुलाए बैठे, जिनमें हमारे अंदर कोताही है, और वो 5 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग is that we must learn to fix our iman. If you want your risk to be firm, right, to be set right, we must understand that it is tied to fixing our iman, right? Now, what does that mean? So, iman is basically, believing in Allah subhanahu wa ta'ala, right? So, if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, what is that belief? That belief requires us to understand that rizq की तारीफ करने वाले भी अल्लाह हैं, और रिज्क देता कौन है ये डिफाइन करने वाले भी अल्लाह हैं, और रिज्क कहाँ से आता है, कब आता है और क्यों नहीं आता, अगर नहीं आता वो भी सब अल्लाह। एंड द क्वेश्चन दैट मी एंड यू हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एंड आस्क आवरसेल्व्स इज कि क्या वो जो तारीफ़ें कुरान हदीस ने हमारे ऊपर की हैं रिज्क से रिलेटेड, क्या आज हमारे जहनों में वो सादिर है या कोई और चीज़ सादिर है? तो देखो, पहली बात ये समझो कि रिज्क की जो तारीफ़ है ना शरीयत में, वो ये है, एनी एंड एवरीथिंग दैट बेनिफिट्स यू एंड इज बिस्टोड टू यू। एक एतबार से, ठीक है, हर वो चीज़, इसका ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं है, आपकी सैलरी से नहीं है, आपके प्रॉफिट से नहीं है, हत्ता कि यानी आपके खाने पीने से नहीं, ये आंखें भी रिस्क है, राइट? देयर इज जिस्मानी रिस्क, देयर इज रूहानी रिस्क। तो बहुत वसी तारीफ है इसकी। तो रिस्क को ना मैंने सिर्फ जॉब की हद तक या चंद पैसे कमाने की हद तक टाई डाउन नहीं करना, पहली तालीम हमें ये दी जाती है। और इन तमाम ये जिस भी चीज़ को मैं रिस्क की डेफिनेशन में कंटेन करता हूँ अपने दीन के एतबार से, उस रिस्क के ऊपर एक हस्ती है जिनको हम अर-रज़्ज़ाक़ कहते हैं, राइट? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ, वो सिफत को जानना लाजिम है। बिकॉज वी बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाट डज दैट मीन? Obviously, at a very basic level, it refers to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's true. But when it comes to my sustenance in this world, me and you have to understand that the provider is Allah subhanahu wa ta'ala. Right? The provider is Allah subhanahu wa ta'ala. It's as simple as the fact, if you're working in a company and, it is maybe the time for you to get an annual increment. So you will be smart enough to realize कि मुझे HR के पास जाना है, एंड मुझे HR से बात करनी है, या मुझे उस अपने लाइन मैनेजर से बात करनी है जिसको मैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा हूँ और जिसने मेरा अप्रेजल करना है. You will not go to any other person. You will not go to the board of trustees because they have nothing to do with this. In a similar sense, we have to remind ourselves that the Allah that we have believed in is the one of His names, and that's why He wants us to know all of this, is that He provides for us. He provides for us material risk, right? Whatever we see in this dunya. And He provides for us the internal, or what I would call as the moral and the spiritual risk, right? The emotional sustenance of the heart. The emotional sustenance of the heart. क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि हमारे जो दिल का इत्मीनान है, जो सुकून है, वो किधर है? वो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी याद में रखा है. अब आप मुझे बताओ, have you not come across people who have tons and tons of money and house and whatever you want in this dunya, all of material risk, and their heart is devoid of that sukoon for whatever reason? So it means कि उनके पास material risk तो है, but वो spiritual emotional risk से उनको महरूम कर दिया गया है. And have you not also come across people जिनके पास कोई material risk नहीं है बज़ाहिर, सुबह खाना खाया है, शाम कहाँ से खाना है उनको वल्लाही मालूम नहीं है, but you look at their faces and you hear them say things, and इतना सुकून है उनके दिलों में, इतना सुकून है उनकी उसमें कि कोई जिसकी कहते हैं ना हद ही नहीं है. मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस खित्ते की एक कैटेगरी ऑफ पीपल, अच्छे बुरे उसमें ज़रूर हो सकते हैं. आप हरम शरीफ तशरीफ़ ले जाएं एंड आपको मस्जिद नबवी और क्या कहते हैं मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में बहुत सारे ये क्लीनर्स नज़र आएंगे. अभी मुझे कोई रिसेंटली बता रहा था, बड़ा मुझे सुन के अफसोस भी हुआ कि उनकी जो सैलरी है, ठीक है, of that one person is 300 riyals a month, not a day. 300 riyal, even if you were to calculate it in the Pakistani context, converts to what, 24,000 rupees after hyperinflation over here.
पाकिस्तान की भी मिनिमम वेज से लो है. Some of them there, the sukoon that they have because they are serving the house of Allah subhanahu wa ta'ala is just अजीब. मैंने शायद ये पहले भी सुनाया था, मेरे अब्बा के एक दोस्त हैं, वहीं मदीना, अमेरिकन डॉक्टर, मदीना शिफ्ट हो गए, तो कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को जो है ना दे के भेजा उनमें से एक क्लीनर को 500 रियाल देने के लिए एज अ सदका. सोचो जिसकी तनख्वाह 300, क्या गुजारा करता होगा. कहते हैं दैट मैन रिफ्यूज दैट मनी टू माई सन एंड ही सेड कि आई एम राजी विद व्हाट माई अल्लाह इज प्रोवाइडिंग. एंड ही सेड व्हेन आई सॉ दिस हैपन आई टोल्ड माई सन कि इस शख्स, ये अल्लाह का वली सच्चा बैठा है. मुहावरतन कहा कि इसके पैर धो के पीने चाहिए तुम्हें, कि somebody who has that amount of tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So we must understand that the definition of rizq in our deen, yani when I say fixing our iman, this is what it refers to. That I keep telling myself कि rizq की तारीफ क्या है और rizq आता कहाँ से. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. That Allah Ta'ala क्या कह रहे हैं कि यानी there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. कोई ऐसी मखलूक नहीं, इंसानों की तो बात ही नहीं हो रही, हर शख्स का रिज्क, हर मखलूक का रिज्क अल्लाह ताला से टाइड है. सो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ये बारिश, सनलाइट, एवरीथिंग दैट यू सी इज रिस्क एंड एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट. एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, कि अ सोल विल नॉट डाई until it gets all of the provision that has been appointed for it, right? It will not die. मतलब क्या कि मत खपो इसके लिए. अब क्या मतलब है इस बात का? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो रिज्क लिख दिया गया है, और ये ऐसी अहादीस और जो कुरान की आयतें भी मैंने आपके सामने रखी, असल में इनका बुनियादी मकसद सिर्फ एक बात समझाना था कि मुझे और आपको इसकी परेशानी नहीं लेनी, मुझे और आपको इसकी परेशानी नहीं लेनी, मेहनत करनी है. मुझे और आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना. इट वॉज टू गिव कंफर्ट टू आवर हार्ट्स दैट यू नो व्हाट, आई एम बैकिंग यू, डोंट यू वरी. इन अ वेरी स्मॉल बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ल्ड और अ डिसीजन वर्ल्ड वेर यू आर शेकी अबाउट समथिंग, इफ यू हैव अ फ्रेंड और एन एल्डर स्टैंडिंग बिहाइंड यू हु टेल्स यू कि यार अगर लॉस भी हो गया ना, डोंट वरी, आई विल कवर इट अप, आपका दिल बड़ा हो जाता है. हालांकि he might not even cover it up. हो सकता है he might, but if he says it to you ना, yeah, you don't worry, you do your work, आप मेरे पे छोड़ दो, it really changes your approach to anything. Actually in essence Allah Ta'ala is telling you what, कि मेरे बंदे, मैंने तुझे इस दुनिया में ना किसी काम के लिए भेजा था, तू वो काम कर, और तेरा जो पालना बोलना है ना वो तो छोड़ दे मेरे पे, right? I sent you as my khalifa, inni ja'ilun fil ardi khalifa, right? I sent you as a man, ठीक है. अल उलमा उल वरसतुल अंबिया, कि उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया. फिर हमें कहा गया इल्म हासिल करो कि जो नबियों का काम लेके चलेंगे. आई सेंट यू एज अ मैन, जो इंसानियत में खैर फैलाएंगे. कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास. Allah is giving us all of these things that we have to do, and the beauty of this is this, कि in this Allah is saying कि the one thing that will distract you the most, the dunya. What is it about the dunya? The risk of the dunya. वही नेसेसिटी है ना असल, जिसके बगैर अल्लाह कह रहे वो तो मेरे पे छोड़ दो. Isn't it अजीब दैट हम उसी एक चीज़ के पीछे, मैं और आप दोनों, अपनी ज़िंदगियां खपाते फिर रहे. आज हर मुसलमान घर में कुल फिक्र बच्चों की तरबियत में, ये खाएगा कहाँ से, स्ट्रेट एज नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, फलाना नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगेगी, पाकिस्तान से भाग जाते हैं, यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं, इधर का वीज़ा लगा लेते हैं. यही कॉन्वर्सेशन है. ऐसे ही नहीं है, मेरे तो अपने घर में ही हो रही है, मुझे पता है, मैं नहीं कर रहा, डोंट वरी, ठीक है. बट दैट्स हाउ इट इज़, राइट. You go because, and people are doing it out of concern. But is this what Allah wanted from us? Allah is telling us, I will take care of it. Why are you worried? And we keep forgetting it. So the first thing that I said to all of you is कि fix your iman with regards to understanding कि rizq आ कहाँ से रहा है. I remember we had to remind people of this fact in our own selves when the COVID pandemic came down, that rizq was coming from Allah. You think the COVID virus could stop Allah from providing rizq? It couldn't, right? And now you believe it. 3 साल बाद. We couldn't believe it back then. लोग इतने परेशान थे, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ होगा. So वो है, देखो, the story of Ibrahim alayhi salam
and Bibi Hajra. Allahu Akbar. That Ibrahim alayhi salam is being told to leave his wife and his chota sa bachcha, Wadi ghayr zi zar'in, in the middle of nowhere. Absolutely in the middle of nowhere. And what is the promise that Allah does to him? That, I have to take care of him. You don't have to worry. And isn't that fulfilled? वही अल्लाह है ना आज. And इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ दुआ मांग के जाते हैं. और उसकी तकमील हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं कि कैसे होता है. इनफैक्ट तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, ये अजीब है. एंड ये एक हदीस ना, इसको बार बार पढ़ना चाहिए इंसान को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में एक तासीर भी है और एक हिकमत भी है. कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया that if you were to rely upon Allah with the reliance due to Him. So today we do rely upon Allah, but we don't do it with the reliance that it is due to Him. यानी ऐसा तवक्कुल जैसा कि हक है अल्लाह ताला का, He would provide for you just as He provides for the birds. Right? The example of the birds is beautiful because they don't have any skill set per se, but they leave their nest every single morning and they come back, with their bellies full. So, and that is the izn of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the doing of Allah subhanahu wa ta'ala. But so what is it Allah is saying? Ki ye wo hai, they go out in the morning with empty stomachs and they return what? Such that it remains full. एक और रिवायत में क्या आता है, इसके साथ ऐड करो इस चीज़ को, इस बात को समझो कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदे, अगर तुम अपनी फरागत में मेरी इबादत करो, if you turn to me, if you realize that what is your asal maqsad, what would I do? I would provide for you. I would increase your wealth. I would give to you of this dunya as well. And if you stop doing that, मैं तुम्हें इसी दुनिया में खपा दूंगा. These are the words. मैं तुम्हें इस दुनिया में खपा दूंगा. I will make you busy in this dunya. Ask yourself, aren't we busy in this dunya? So busy कि किसी के लिए टाइम नहीं. हत्ता कि घर बैठ के बेगम के सामने, माँ बाप के सामने भी टाइम नहीं है, ये काम बहुत. और ऐसे खपेंगे कि तुम हमेशा फिर भी फकर की हालत में ही रहोगे, कभी गनी नहीं हो पाओगे. That's what it is. अच्छा, by the way, most Western societies are a great example of it. People tend to glamorize England a lot. तो वहाँ मुझे रहने का 1 साल मौका मिला. आप देखिए लोग खपे पड़े होते हैं. It might have good things. People are working day and night. ठीक है, 30-35% टैक्सेस में चला जाता है, फलाना इधर चला जाता है, इस बैंक से ये प्लेज दे, इससे वो प्लेज दे. तो पूरी जिंदगी खप जाते हैं एट द एंड ऑफ क्या करने के लिए, एक पेट पालने के लिए. और हासिल क्या कर लिया कि मॉर्टगेज करके सूद पे 2 घर खरीद लिए, जिंदगी का मकसद, और ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया. बिकॉज ब्रिटिश पासपोर्ट से तो सीधा जन्नतुल फिरदौस में दाखिला गारंटीड है ना. किधर लिखा है? सूरह वाक़िया में लिखा है या सूरह मुल्क की तशरीह ये थी. बट ये कुल मकासद है हमारी ज़िंदगी के आज. सो हमें ये बात समझनी है कि अल्लाह ताला हमें इस बात को याद दहानी करवा रहे हैं बार बार. मेहनत अपनी जगह अभी भी मौजूद है. अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जो कमाया था उसको मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ जाते हैं दीगर सहाबा की तरह. एंड आपसे सब उनकी जिन सहाबी से भाईचारा करवाते हैं तो वो सहाबी उनको हर चीज़ देने को तैयार हो गए. अब वो ये भी कह सकते थे अल्लाह ने रिस्क मेरे लिए जो है ना देखो कैसे तय कर दिया. ठीक है, हमारी वाली अप्रोच कि हर मुफ्ते को भी रिस्क कहना है. What did he say to him? He said, just tell me कि यहाँ बाजार है. And he went straight to the market. And because his trade, क्या कहते हैं, करने की ability was so good, ended up making a profit on day 1. So that's, the risk is again from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, one thing on this, and I'll move to the second point, is that a lot of people have this question, एक इश्काल ये होता है कि अच्छा, if risk is really from Allah subhanahu wa ta'ala, why is it that we have so much poverty? And a country like Pakistan, so you really see a lot of it. ठीक है? So much so now, I think in the morning my wife was telling me that we've had around 12 or 18 cases just in the past couple of weeks of people who have supposedly taken their lives. Courtesy, Wabda, and the electricity bills that are being sent, which is a zulm of itself, right? So, एक wisdom ये है कि देखो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, this is the 42nd surah, 27th verse, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. That if Allah had extended excessively provision for His servants, यानी अगर अल्लाह खुल के आपको दे देते, they would have committed tyranny throughout the earth.
कि अगर अल्लाह ताला आपको उतना दे देते ना जितना आप चाहते थे, तो उसका हिस्सा ये ना, उसका नतीजा ये ना होता अक्सर व बेशतर कि हम शुक्रगुजार होते, ये हम ज़्यादा दीन की तरफ आ जाते, हम अपनी बगावत में, अपने जुल्म में और बढ़ जाते। क्या आज यही हकीकत नहीं है उन मुल्कों की जिनको मिल गया है? जस्ट लुक एट योर, क्या कहते हैं, ब्रदर्स इन द मिडल ईस्ट जो ऊंट चरा रहे थे, एंड देन गॉड गेव देम ऑयल। यू टेल मी, आर दे मोर इस्लामिक नाउ? उन मुल्कों में दीन की तरफ बढ़ा जा रहा है या कम हुआ जा रहा है? आप अच्छा चलो उसको भी छोड़ दो, अपनी और मेरी ज़िंदगी को देख लो कि जब जब हमें दुनिया ज़्यादा मिली है, इन वट एवर शेप साइज एंड टाइम, हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हुए हैं, मस्जिद ज़्यादा जाना शुरू हुए हैं या और ज़्यादा याशी में बढ़े? मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि जब भी मुझे अल्लाह ने ज़्यादा अता किया है, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव बीन मोर डिल्यूटेड इन द दुनिया। वही तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर, दैट अल्लाह ताला जो है, ही इज़ ऑफ हिज सर्वेंट्स एक्वेंटेड इन थिंग्स, ही नोज अस बेटर देन वी डू। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि रिज़्क़ की कमी होना भी एक खैर है, राइट? इसमें भी एक खैर है, and Muslims can take pride of it. So minus the zulm that we might have in this country, whether that is the political parties or other people in this country, ठीक है, the army or the judiciary, whoever you want to blame for that, वो एक अलग तज्जिया है। You have to understand कि at the end of the day, if your and my individual approach to this is right, what you will definitely find is this कि even this can be a means to khair, right? I was joking with some friends कि don't worry, इंशाल्लाह हमें अल्लाह जन्नत में अता करेंगे। We are a third world country, हमें अल्लाह जन्नत में अता करेंगे। ऐसे अभी वो लास्ट वीक आई वाज गोइंग टू कराची, तो जाते हुए आई वाज रीडिंग दिस बुक ऑन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एंड द फर्स्ट कपल ऑफ चैप्टर्स basically had the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidah Aisha, and the simplicity of that house and the simplicity of the living of the Prophet and how he chose it voluntarily, like you know, शर्म से इंसान डूबना शुरू हो जाता है। The size of the hujra, right? The meals of the Prophet, how he would do it one day, the zuhud of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then on top of it, the shukr that he had despite that. So we belong to a नबी जिन्होंने इतना zuhud इख्तियार किया, तो हम क्यों इन चीज़ों से परेशान हो रहे होते हैं? तो कम रिज़्क़ या ये मुश्किल हालात, if anything, I think they remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. And a true person would really understand कि इसमें बहुत बड़ी एक सादत है कि अगर हम अल्लाह के करीब हो जाए किसी बहाने से हो जाए, right? किसी बहाने से हो जाए। The second, which is the flip of it, और ये इसको ना मिन हैसुल जमात इतलाक नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोगों में इससे मायूसी पैदा होती है कि कई दफ़ा ये जो रिज़्क़ की कमी है बारिशों का ना होने की शक्ल में हो सकती है, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं सैलाब हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, तो इनफरादी तौर पे हमें ज़रूर ये बात समझनी चाहिए कि इट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, यानी हमारी बदआमालियाँ और गुनाहों की वजह से ये चीज़ हो सकती है। बट उसमें भी देखो दो पहलू। उसमें पहला मुस्बत पहलू ये है कि अगर अल्लाह दुनिया में हमें किसी मुश्किल से गुजार रहे हैं मेरे गुनाह की वजह से, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे फिर उसी गुनाह से तौबा करने का भी मौका मिल रहा है। ऐसे है ना, क्योंकि कुरान और हदीस हमें एक बात ये भी तो बता रही है कि कितने कुफ़ार ऐसे हैं कि जो गुनाह भी कर रहे हैं, अल्लाह से दूर भी हैं, और अल्लाह उनको उनकी देन में बढ़ा देते हैं। वाई? So that then they're given an eternal punishment. If Allah is, giving us tough halat in this world, and if we are people who really have Allah in the picture, it's a reminder for us कि बेटे ठीक हो जाओ. It still can be taken positively. So anywhere, even for a believer, जहाँ अल्लाह ताला even अगर उस पर घेरा तंग भी करते हैं ना, आपकी सोच सही है ना, तो आप उससे भी मामला ठीक कर सकते हैं। बिकॉज मायूस नहीं करना चाहते अल्लाह ताला हमें, अल्लाह हमें ज़लील और रुस्वा नहीं करना चाहते। ये सब स्कीम टाइड इस बात से है कि अल्लाह मुझे और आपको याद दहानी करवाना चाहते कि अभी भी वक्त है कि तुम ठीक हो जाओ। सो it can be a consequence of our actions, and it will benefit us if we think about it in that sense and make true istighfar. हाँ, if we say कि बस अल्लाह नाराज़ है, कौम बड़ी ख़राब हो गई है, ये है वो है फलाना, और मायूसी में पड़ जाए, that's not दीन। मायूसी बिल्कुल दीन का मिजाज नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। और तीसरी चीज़ ये भी है कि मुझे और आपको ये समझना है कि इसकी एक और वजह, द नोशन ऑफ पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिस्क, इज दिस दैट देखो, एवरी टाइम यू डिपार्ट
from the notion of the Islamic teachings, right? And now the Islamic teachings that I'm referring to over here are not teachings of ibadat. वो एक अलग मौजू है. Islamic teachings of मुआमलात, यानी तिजारत, कॉमर्स, ये चीज़ें कैसे करनी, जब जब हम उससे हटेंगे ना तो आप ऐसे समझें कि फिर भी ये जुल्म होगा. तो एक छोटी सी मिसाल ये है कि आज हमने ज़कात को एज अ मीन्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन लेना छोड़ दिया है. हम ज़कात देते नहीं हैं, जो देते हैं वो सही जगह पहुंचती नहीं है, कितने इदारे खा जाते हैं, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचती नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं. मे बी यू एंड आई आर डूइंग इट फाइन, अल्लाह सबकी ज़कात कबूल करे, बट ये एक चीज़ है. देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफाए राशिदून के दौर में ज़कात वो फरीज़ा नहीं था जो कि बस अदा करना है. जैसे हम परेशान होते हो यार रमज़ान आ गया अब ज़कात भी देनी पड़ेगी. ज़कात वो इकोनॉमिक टूल था जिसके ज़रिए से गुर्बत और फ़क्र को मिटाया गया. बैतुल माल में माल मौजूद होता था और कोई गरीब शख्स नहीं था. ये अचीव किया गया है. फिर वो मैं हमेशा कोट करता हूँ IMF की रिसर्च, मेरे वॉरिक के प्रोफेसर ने भी सुनाई थी कि इफ़ द डेवलप्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड वर टू गिव अवे 2% ऑफ देयर एक्सेसिव ग्रेन स्टॉक, ऑल वर्ल्ड पॉवर्टी वुड एंड टुडे. अल्लाह ने भी 2.5% ही मांगा था ना. अब बड़ी समझ आती है हमें, 14 तबक हमारे रोशन हो जाते हैं क्योंकि IMF ने रेफरेंस दे दी है. अल्लाह कुरान या हदीस में कुछ कहें वो बात हमें मुश्किल लगती है. और आप बताएं ना, हमारी किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़कात को कहाँ उस मीन्स पे लिया जाता है? लिया नहीं जाता. अभी मैं उस दिन तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पढ़ रहे थे जहाँ हमारे उस्ताद जी बता रहे थे बड़ी अच्छी बात कि आप जब मदीना मुनव्वरा आए तो मदीना में 11 बाज़ार मौजूद थे. तो अल्लाह के नबी बिकॉज ही बिकेम द हेड ऑफ स्टेट, उन 11 बाज़ारों में अल्लाह के नबी ने सूद का जो उसूल था ना, जिसको हम रिबा अल फज़ल कहते हैं, एक दूसरी तरह का ये समझो सूद है, उस सूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि वो जो एक जुल्म की बेसिक परपेचुएशन थी ना उसको वहीं रोका. ठीक है. एंड दूसरी तरफ क्या किया, एक नया बाजार भी बनवाया where you had a true Islamic model of how trade would be done. And that sort of led to I remember the Ustad explained beautifully how over a span of few years all sort of accumulation of wealth in one hand started to come to an end. So देखो असबाब साथ साथ, बट वो असबाब बोरो कहाँ से हो रहे हैं? दीन से, कुरान और हदीस से बोरो हो रहे हैं. वो इसके अलावा नहीं हो सकते. I mean, you cannot have a country that will thrive जब आप हर 4 दिन बाद IMF के आगे घुटने टेकेंगे. You just cannot, that will never work. And if you don't believe me, I mean, go study what IMF does to countries. Go study the notion of conditionality and cross conditionality. मैं तो पढ़ के ही आया हूँ 1 साल जो इंग्लैंड में रहा था कि कैसे वो मुल्कों को घुटनों टिकवाते हैं. पाकिस्तान is a great example of it now. For the initial few decades, we never felt it. So, but the sad part is कि even in our conversations today, how many of us really understand this fact कि हमारी जो ज़वाल है उसके पीछे दीन से दूरी वाकई हकीकी चीज़ है. अब मसला पता है क्या होता है कि हम गलत जगह पे गलत बात कर देते हैं. अब उस दिन भी कोई पता नहीं कि जी ये देखें लड़कियां जो है ना दुपट्टे के बगैर फिर ही इसलिए मुल्क की हालत, तो फिर तो मौलवियों को रोस्ट किया जाएगा. हाँ, फहाशी और यानी की वजह से भी अल्लाह नाराज़ हो सकता है. बट ये बात आप किसी के आगे जाके कहोगे ना, किसी पढ़े लिखे शख्स के आगे, तो देन आपने खुद अपनी इज्जत जो है ना प्लेट में रखी है कि आप मेरी करो. यू हैव टू एक्चुअली शो टू पीपल दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सिर्फ ईमानियात ठीक नहीं किए थे, आपने उनके मामलात ठीक किए थे. ट्रू जेन्युइन बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी सूद का हराम होना, जस्ट एज वन एग्जाम्पल, उसका एक एलिमेंट इज कि हाँ अल्लाह का अजाब है और वो सारा जो सूरह बकरा की आयात है वो वाज़ेह है. बट उसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो आपको एक जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिस्ट को समझाना है, वो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि व्हाट डज इट डू. एंड अब तो देयर इज सो मच रिसर्च अवेलेबल ऑन इट बाय मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम प्रोफेसर्स दैट यू डोंट हैव टू बी शाय अबाउट इट. इट्स वेल बैक्ड रिसर्च दैट व्हाट एन इकोनॉमिक्स, हाउ एन इकोनॉमिक सिस्टम लुक्स विद इंटरेस्ट एंड विदाउट इंटरेस्ट. बट वी डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट, राइट? वी जस्ट डोंट. वी बिलीव इन अदर थिंग्स. So your belief has to be, जिस तरह आप, when I say fixing your ईमान for rizq, I mean believing in the fact कि जो निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, जिस दीन पर आप और मैं we are sitting on a gold mine, वो सिर्फ चंद सजदों या एक हुलिये का नाम नहीं है, वो वाकई एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जिस पे अगर हम मुकम्मल अमल करें तो ये मुमकिन है. And any one of you sitting here, mashallah,
इतने ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े लिखे, अपने कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप में से कोई एक किसी एक एक दीन के खित्ते को उठा के रोशन करना शुरू कर दे तो आप देख लो कि कैसे होगा। आप देख लो, अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिलैंथ्रोपी का जो एड नोशन है हेल्थ केयर में भी है, इजंट डॉक्टर अब्दुल बारी खान इन इंडस हॉस्पिटल अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट? तो मसले शायद उसमें चारों, मुझे नहीं डिटेल पता, ठीक है। वक्फ का जो मॉडल है जिसमें सस्टेनेबल इदारे बनाए जाते हैं, डोंट यू सी एग्जांपल्स आर टर्की में, तो उसकी बहुत मिसाल है। तो these are organ things that are run by individuals who've believed into a system. Isn't अखुवत a great example in your country on how only microfinance, conventional microfinance की टांगे तोड़ी है अखुवत ने, अगर कोई बैठ के comparative analysis करे। So these are individuals, people like me and you, who believed in the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and they started an effort that nobody else was willing to do. Right? So इस चीज का ताल्लुक जो है ना इस बात से है कि मैं और आप ये समझें कि हमारे दीन में ये सब कुछ जो है मौजूद है। यानी इब्न रजब रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जब उसर और युसर को साथ रखते हैं, यानी आसानी और मुश्किल को साथ रखते हैं, तो इसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि जब आपको मुश्किल नज़र आती है, जॉब नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एंड्स मीट नहीं हो रहे, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ आपको पहली दफ़ा वो जो एक धोखा जिसमें आप और मैं मुलव्विस है कि नहीं यार हर महीने बाद पेचेक आ जाना है, यहाँ से पैसे आने, मैं अफोर्ड कर लूँगा, बैलेंस शीट मेरी ज़िंदगी की बैलेंस हो रही है, जब आपको वो डूबता नज़र आता है ना, तो वहाँ फिर इंसान को रियलाइज़ होता है कि एक ही दरवाज़ा है और वो उस अर्रज़्ज़ाक़ हस्ती का। ये बहुत बड़ा फ़ायदा कि जहाँ आप वाकई अल्लाह की मदद होते देखते हो, क्योंकि बाकी असबाब के दरवाजे आपको बंद होते नज़र आ रहे होते। और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस चीज़ से कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। Because you have to teach your kids this thing as well, that everything is from Allah subhanahu wa ta'ala. Everything, right? And you know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught this to his kids. Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ठीक है, यानी I think no child has been more beloved to a father than this girl. Isn't that true? That's who the Nabi's daughter is. She comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and she is not living an easy life. She is hungry, right? And no father can see a child in pain. The fathers here would recognize that. बेटियों से वैसी एक खास मोहब्बत होती है. And she tells the father that, Ya Rasulullah, I'm in need of food. And the Prophet says to her that, you know, I can give you 5 animals that I have. And right now, this is a rare chance the Prophet had animals. I can give them to you, Fatima. Or, and you know, 5 animals meant that I can give you sustenance for a couple of months probably. Or at least a month. Or I could give you 5 du'as that Jibreel alayhi salam just taught me. What do you want? And this is Fatima radhiyallahu ta'ala, right? She said, I want the 5 du'as. Right? I want the 5 du'as. अब ये भी जवाब है ना, जो जिसको अल्लाह से ताल्लुक़ हो उसको वो होता है। मुझे उससे बात याद आ गई कि एक ज़माने में मैं शादी करवाया करता था, शादियाँ, ठीक है, दीनी एतबार से, एक ज़माने में मैंने तौबा कर लिया उस काम से, ठीक है। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, सो आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप अ किड, बता, आई सेड कि यार यानी हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ वाइफ डू यू वांट, यानी दीन ज़्यादा ज़रूरी है खूबसूरती? एंड व्हेन समबडी लाइक मी कॉल्स, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं दीन होना चाहिए, ऑब्वियसली एक बोझ होता है। उसने मुझे बड़े ओपनली कहा, उसने कहा एक लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, दीन मैं खुद ही ले आऊँगा। सो अब हमारे जैसा कोई हो ना, वो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ देखता है। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कह रही है, मुझे वो 5 दुआएं चाहिए। एंड क्या दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि या अव्वलुल अव्वलीन, द फर्स्ट वन, या आखिरुल आखिरीन, द सेकंड वन, या ज़ुल कुव्वतिल मतीन, द थर्ड वन, राइट, या राहिमल मसाकीन, द फोर्थ वन, या अरहमर राहिमीन, द फिफ्थ वन। He said, Jibreel taught me that these 5 will be sufficient. You tell me, all of us sitting in this room, how many of us, when we find out that dollar has gone from, pata nahi, about 300 to 330 now in the open market, think of this dua as a solution? How many of us, when we find out that petrol has doubled and will further double in 10 days, think of this dua? Petrol will reach where it is reaches. You know, आपको आज से कुछ 6 महीने पहले कहता ना कि पेट्रोल 300 का होगा, तो आप कहते पागल हो गए। तो हो सकता है कोई अभी आपको कहे 500 पे जाएगा, एंड यू विल थिंक इट इज इम्पॉसिबल। लेट मी टेल यू, ये जाएगा 500 पे, अल्लाह ना करे, आई एम नॉट टेलिंग दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, ये 500 पे जाएगा अगर इसने जाना है, और हम सब इधर ही होंगे और हम बर्बाद भी रहेंगे, बिकॉज द प्रोवाइडर ऑफ आवर रिस्क इज स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
द चैलेंज इन ऑल ऑफ दिस इज कि हमारी नज़र किधर जाती है, अपनी सैलरी पे, अपने फ्यूल कार्ड्स पे, अपने क्या कहते हैं ऐसे सस्टेनेंस के मीन्स पे या इन दुआओं पे। इसी इम्तिहान भी इसी चीज़ का है। ज़िंदगी वो है जिसमें हम अल्लाह की मर्ज़ी से है, जाना अल्लाह की मर्ज़ी से है, वक्त तय है, रिज़्क तय है, तो हमारे लिए तो टेंशन एक्चुअली होनी ही नहीं चाहिए थी। तो अगर हम वाकई इस चीज़ को छोड़ देते और उस काम में लग जाते अपनी सही एफर्ट करने के बाद जिसके लिए हमें भेजा गया है, we would have been a different generation. You know, one thing about the Sahaba Karam was the fact that the kuffar could see that, you know, what a generation has Muhammad sallallahu alaihi wasallam raised, कि इनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। आज भी आपके जो हकीकी मुजाहिदीन हैं, even I would say, you know, because हमारे यहाँ तो फौज बदनाम हो गई because of the politics of it, but you have to, by the way, do adl in this as well. There might be few corrupt people in the army, but you have to remember कि बेशतर आपका जो बॉर्डर पे बंदा लड़ रहा है, जो सिपाही लड़ रहा है, वो तो वतन के लिए और दीन के लिए खड़े हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे दियानतदार लोग भी होंगे, उसमें भी सियासतदानों में भी अच्छे लोग होंगे। आज भी वो जो शख्स लड़ रहा है ना, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड पे अगर दीन है ना, वो मौत से नहीं डरता, उसको वो शहादत नजर आ रही। ये किसी और दीन के पास चीज़ नहीं। तो वो एक ज़बरदस्त सिफत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें कबूल करना है। तो ये तो दीन था ही इतना खूबसूरत कि ये हमें इन छोटी छोटी परेशानियों से एलिवेट करके एक बड़े मकसद पे लाके रख रहा था। हमें उस बड़े मकसद पे चलना है, हमें उस बड़े मकसद पे चलना ही चलना। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, पहली ज़रा लंबी थी, दूसरी चीज़ें इतनी लंबी नहीं होगी। The second is tawbah and istighfar. To fix, so I said 5 asbab. The second is istighfar and tawbah, right? Repentance and seeking forgiveness. So, you know, no calamity befalls us except, okay, for through our sins. So there are hadiths that mention that even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself, who is ma'suman al-khata, who is infallible, right, would make istighfar 70 to 100 times a day. Okay? So इस मामूल को एज एन इबादत ऐड करना और इस नीयत से करना कि ये जितनी वबा और मुश्किलात है ना जो मेरे ऊपर या लोगों पे, ये हम मेरे गुनाहों की वजह से, एंड आई वांट टू सीक फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रॉम दिस, राइट? सो द प्रॉफेट यू नो says that whoever starts doing it, and he says istighfar with kasrat and firmly holds on to it, Allah subhanahu wa ta'ala will remove all gloomy things from him. यानी जो मायूसी है ना, अल्लाह ख़त्म कर देंगे, and his stress will be removed, and he will have rizq from sources that he cannot even imagine. ये कुरान में है कि तुम में से जो तकवा इख्तियार करेगा, वमन यत्तक़िल्लाह, ठीक है, अल्लाह will create a way for him and he will give to him in a manner कि इंसान उसकी तवक्को ही नहीं कर सकेगा, मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह का वादा है इस चीज़ पे, राइट? सूरह नूह 71 सूरह 10th 11th 12th वर्स अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बड़ी मशहूर आयत है, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कि you know, seek forgiveness of your Lord, indeed he is the perpetual forgiver, युरसिल समाअ अलैकुम मिदरारा, and what will he do as a result of it? वो आसमानों से बारिश उतारेंगे। Now this can also be a form of rizq, inam from Allah. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. He will increase you in your wealth and children and provide for you gardens and provide for you rivers. So what is it? What is the amal that gets you all of this? Consistent istighfar from Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because the notion of istighfar actually is the first step towards leading a life of piety and taqwa. Let me tell you one thing. Any one of us, and you might not believe it right now, who is involved in whatever sins we are involved in, right? जो भी है, if we can regularly, every single day, make istighfar about those sins. So, you know, some of you might have girlfriends before you are even married, okay? Or you might be listening to things that you should not be listening to, looking at things that you're not listening to, binge watching, doing things, missing prayers. If every day, by the end of that day, you can start saying sorry for that to Allah subhanahu wa ta'ala genuinely. ये 70 और 100 की तादाद, इन तादाद तो कोई भी हो सकती है, कि पीछे ये ना जब आप बार बार ये कहते हो, you start internalizing. So let me tell you this, before you even realize how it happened, वो गुनाह आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगे. Just give it a few weeks. ठीक है, try this. Take any one sin that you've not been able to leave and target this. क्या है आज 3rd September? Wait till the end of September. Do it every 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोज़ रात सोने से पहले उस गुनाह के बारे में. 30th September come back and tell me what happened.
मैं नहीं आऊँगा, ठीक है ना, फूके मारने। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे, यू विल सी द मदद ऑफ अल्लाह कम डाउन, है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो दूसरी चीज़ क्या बताई? इस्तिग़फ़ार। तीसरी चीज़ नमाज। अब ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, ठीक है, बट कुरान क्या कह रहा है इसके बारे में? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, एंड एंजॉइन प्रेयर अपॉन योर फैमिली, ठीक है, एंड द पीपल दे से एज वेल, ठीक है, वस्तबिर अलैहा एंड देन बी स्टेडफास्ट देयरिन, यानी इसमें फिर इस्तिकामत के साथ उस नमाज को पकड़े रखो, राइट। सो यू नो पीपल शुड प्रे एंड देन दे शुड होल्ड फर्मली टू इट। ला नसअलुका रिज़्क़, we will not ask you, we ask you not for provision, la nas'aluka rizqa, ठीक है, नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अब इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम नमाज को थामे रखोगे ना, तो हम तुमसे ये जो रिज़्क़ की परेशानी है ना, ये दूर कर देंगे, राइट। वी विल सस्टेन यू, तुम्हें फिर उसकी परेशानी, यू हैव टू फर्मली बिलीव इन द फैक्ट कि इस नमाज के साथ जो है, इब्ने कसीर यही फरमाते हैं इस आयत के बारे में कि देखो अल्लाह ने नमाज और रिज़्क़ को ऐसे जोड़ा है यहाँ कि अल्लाह आपको ये बता रहे हैं कि अगर तुम पढ़ते रहोगे नमाज, अल्लाह तुम्हें कभी रिज़्क़ तुम पे तंग नहीं करेगा। बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। अब अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि ये तो फ़राइज़ है, हमारी ड्यूटी है करने की। अल्लाह कह रहे हैं इस फ़र्ज़ के साथ भी मैंने तुम्हारे साथ ये इनाम जोड़ दिया। लोग समझते नहीं हैं इस बात को कि नमाज के छोड़ने से रिज़्क़ में कमी आती, नहीं समझते लोग। हाँ, लोगों को ये पता है कि डॉलर के चेंज होने से रिस्क में कमी आ रही है, एलसी नहीं खुल रही रिस्क में कमी आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिस्क में कमी आ रही है, बुरा नेगोशिएट करो जॉब में तो रिस्क में कमी आ रही है। कोई भी हम में से नहीं सोचता, ना आप सोचते ना मैं सोचता हूँ, अल्लाह कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी आती, भूख होती, कुछ भी होता, आप सब अपने घरों में चले जाते, यानी हुजरात जो है ना वहाँ चले जाते और बाहर दरवाजे से अपने घर वालों को पुकारते, या अहला या अहला, और क्या कहते हैं, यानी ए मेरे घर वालों, सल्लू सल्लू सल्लू, कि नमाज पढ़ो। एनी टाइम एन इंपॉर्टेंट मैटर वुड कम टू द प्रॉफिट, ही वुड टर्न टू प्रेयर। नाउ व्हाट डज दैट मीन, राइट? इट जस्ट मीन्स दैट ऐसे नमाज पढ़नी है सच दैट मी एंड यू रियलाइज कि हमारी पूरी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। बस ये फर्क है। तो नमाज को सिर्फ इबादत के तौर पे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़नी है कि वी रियलाइज दिस। एंड यू नो आई वाज प्रिपेयरिंग एंड लिसनिंग टू वन ऑफ द शयूख से दिस एंड आई वाज थिंकिंग दैट आई नेवर प्रेड लाइक दिस ऑनेस्टली। आई प्रेड एज इफ कि नहीं यार वो मिस हो गई तो फर्ज रह जाएगा, फिर आई विल फील बैड अबाउट इट, फिर बुरी बात है, बयान भी तो देना है। दैट्स द बेस्ट ऑफ अस टू प्रे रियली इन अ मैनर। हाउ मेनी ऑफ अस प्रे? चलो आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ अस प्रे नमाज? अभी अक्सर लोग मगरिब पढ़ के आए, किसने मगरिब इस कैफियत से पढ़ी थी कि इस मगरिब में जो है ना वो ताकत मौजूद है कि मेरे मसले और इस मुल्क के मसले हल हो सकते? वी डोंट प्रे लाइक दैट। अच्छा, इसके बरक्स हमारी अल्लाह से मुलाकात है ना, ये किसी दुनिया के अच्छे बंदे से मुलाकात हो। अब आप नसीहा इंस्टीट्यूट, आप मुझे कहें कि सर आपका इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जो कि एक झूठ है, बट चलो मैं आपकी ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात करवाता हूँ, आधा घंटा होगा, आप उसको कन्विंस कर लें जो भी आपने लाइसेंस लेने, जो भी आपको चाहिए। हर बंदे को कुछ चाहिए होता है। तो आई थिंक आई विल प्रिपेयर फॉर दैट मीटिंग लाइक एनीथिंग, knowing that this is my one shot to get a lot of things sorted out. Just giving you as an example, right? But Allah gives me 5 shots in a day where I get to speak to Him, converse with Him, where He is close to me, which Allah is saying कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। And I never view it like that, because मुझे ना उसकी अजमत समझ आई, ना मुझे उसको पता है। तो you know that household जिसमें उलमा फरमाते हैं नमाज है ना, it's a household which is marzuq from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a marzuq household कि अल्लाह उस घर की जिम्मेदारी, उसकी रिस्क की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अल्लाह उसको रिस्क अता करते हैं। तो बड़ी अहम चीज़। तो 3 चीज़ें हो गई, ईमान को दुरुस्त करना, यानी कि पूरा अपना अल्लाह के राज़िक होने को और इसको याद रखना। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमने अपनी प्रैक्टिस में लेके आनी। तीसरी चीज़ नमाज, और ऐसे नमाज पढ़ना, अब भूल जाओगे, आप भी भूलेंगे, मैं फिर भी आप बार बार याद करना। याद ध्यानी मकसद है, हम यहाँ क्यों आते हैं, राइट? कि इस नमाज में कुल हैत मौजूद है। चौथी चीज़ जिसको हम कहते हैं सुलतुल रहम, यानी कि the Prophet said that any one of you who wishes to see increase in his wealth and to leave behind a good legacy, then they should join ties with family members. Allahu Akbar, कितनी अजीब हदीस।
ठीक है, कि दो ऐसी चीज़ें हैं, रिज्क और खाला या फुप्पो से मिलने का क्या ताल्लुक है, अनलेस अमीर खाला हो तो वो एक अलग मसला हो सकता है, यू नो, किड्स माइट गो फॉर अनदर रीज़न, बट व्हाट इज ये हुस्न मुआशरत कायम की जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात समझा रहे हैं कि इसमें अल्लाह इतने राज़ी होते हैं जब हम ये जोड़ पैदा करते हैं रिश्तों में कि अल्लाह इंसान के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अल्लाह इंसान, अब आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वी बिकम टू बिजी फॉर आवर फैमिलीज, राइट, वी बिकम टू बिजी, सो you know, you have to bring the deen in and you have to remind yourself of the fact कि नहीं, मुझे अल्लाह की खातिर ये करना। अब फैमिली में दो टाइप्स हैं, you know, there is core family and there is extended family. Core family is what? Parents, children, if you have any, spouse. ये तीन, I would say primarily, even दादा दादी, I can add to that if you're living in a system, या अगर आप वो हयात है तो इनको तो बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, एंड वो भी निगलेक्ट हो रहा होता है। अभी just a couple of weeks from, I think I was on Umrah and I took my parents, and I think we went together. My parents me for a very long time, and my kids and my wife were not with me, and it was an amazing experience, right? Because I could drive my mom on the wheelchair जब वो थकी होती थी, वैसे she walked as well, but and पता मुझे महसूस हो रहा था कि वो खुश हैं, दुआ दे रही हैं. My Abba was very happy. We had a very nice time, and even I enjoyed it a lot, right? Because माँ बाप की खिदमत में क्या ही खिदमत की होगी, टूटी फूटी खिदमत की, बट एक खुश। तो जस्ट आई थिंक अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, इसी एक वजह से बात करूँ, माई मदर मैसेज मी एंड शी सेड कि यू नो तुम बिल्कुल टाइम नहीं देते, एंड शी सेड तुम्हारे अब्बा जो है ना, ही इज़ नॉट हैप्पी विद यू, एंड दैट्स बिकॉज एवर सिंस आई हैव कम बैक आई हैव बीन रियली बिजी। तो मुझे भी पता है कि बस फ़ोन पे भी जैसे कहते हैं ना, हालांकि मैं रोज़ कॉल कहीं ना कहीं कर लेता हूँ, बट हार्डली बात हो रही होती है बिकॉज आई एम टू ऑक्यूपाइड विद थिंग्स, एंड मैं अपने दिमाग में दीन की आला खिदमत कर रहा हूँ, बट the only reminder that I have to tell myself is this कि ये असल है और कुछ और असल नहीं है इसके बरक्स, कि असल में ये मुआशरत कायम किया। तो मैं आपको क्यों वाक़या सुना रहा हूँ कि देखो हमारा आप वेस्टर्न मुआशरों को देख लें कि फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है, ना माँ बाप की कदर है, ना औलाद की कदर, कुछ भी नहीं रहा हुआ, हाइपर इंडिविजुअलिज्म एट इट्स बेस्ट, नफ्सा नफ्सी। ये नेमत है इतनी बड़ी कि आपके पास ऐसे लोग हैं, अगर आपकी माँ जिंदा है, उनकी दुआ आपके हक में जो कबूल होती है किसी के लिए हो ही नहीं सकती। फिर दीगर रिश्तेदार, दीगर रिश्तेदार, खाला, माँ का मकाम रखती हैं आपकी खाला, फुफ्फो, ममानी, चचा, all these relationships are such important relations, and I speak for themselves because I know I'm really bad at that। दुआ करें अल्लाह हम सबको इन रिश्तों से जोड़ पैदा करने वाला बनाए, क्योंकि इसमें रिज्क टाइड है, राइट, इसमें रिज्क, अल्लाह की रजा टाइड है। So we have to do our best in this। You know, we go back and with the niyat of the hadith of the Prophet that we heard, we give them a call once and twice. We meet them anytime we can take out time. And the last thing is basically tears of gratitude. Now this is ajeeb. You know, we are people who experience tears when we sin. जब हमसे गुनाह हो जाता है ना, तो तब ज़रूर हम रोते भी हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते भी हैं. But one thing that we have to realize that all the complaints that we've all made in the past few weeks about the economic situation of this country, ठीक है, we've all talked about it, ऐसे ही है ना, मैंने तो की है बात, एक को गाली दो, उसको दो, इस पॉलिटिकल पार्टी को, फलाने को, फौज को, जुडिशरी को, इस बंदे को, उस बंदे को, पेट्रोल को, डॉलर को, सब चीज़ को, जो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल फैक्चुअल भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी होंगी. You have to understand that despite all of this, hasn't Allah Ta'ala given me and you so much? Just ask your heart this question. उस सब के अलावा अल्लाह ताला ने कितना दिया है. चलो एक और तरीके से इसको देखो कि जो हालात हैं जो कि मुश्किल हैं, ठीक है, वो हालात ज़्यादा मुश्किल हैं या ज़्यादा सिवियर हैं या अल्लाह ताला की नेमतें ज़्यादा? आई थिंक द नेमतें पार्ट इज़ वे मोर. हर तरह की नेमत, बचपन से लेके आज तक, क्या अल्लाह ने हमें अता नहीं किया? क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने हमें? आज़ादी कोई नेमत नहीं है, बाशऊर होना कोई नेमत नहीं है, आकिल बालिग होना कोई नेमत नहीं है, आँखों का होना कोई नेमत नहीं है, बोल सकना कोई नेमत नहीं है, दोस्त होना, माँ बाप होना, साथी होना, दीन की समझ होना, इस उम्मत में से पैदा होना, हाँ, तालीम हासिल करना. आप में से अक्सर पढ़े लिखे तबके से ना,
Less than 1% of this country has access to university education. You're amongst that 1%. For something that, me and you don't deserve that. Aren't the blessings true enough? I mean, look at what has happened in Syria as an example. An area where, pata nahi kitne million kids have been made homeless. So many of them have been orphaned. That's not happening to us. तो कंप्लेन तो हम बहुत अच्छी करते हैं, कभी शुक्र अदा किया हमने? And what am I talking about? Tears of gratitude, not the lafzi alhamdulillah. Literally, and whose sunnat was this? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Every night when our Nabi stands in tahajjud and he cries to an extent कि अम्मा आयशा क्या कह रही है? Our mother Aisha is telling us what, right? कि जो जगह थी वो आंसुओं से भरी होती थी. So I would say, Ya Rasulullah, why are you crying? And he would say, Afala abdan shakura. कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं for what he's given me? Because Aisha is telling her, what they are, so you don't even have sins. Right? What are you crying for? So the tears of the Prophet are out of gratitude as well. इतना शुक्र था उनके अंदर. So there is still a lot of shukr that can be done in whatever we have. There is still a lot of shukr that can be done. And we just don't have that. People say बहुत मायूसी हमने क्रिएट की है ना, किसी और ने तो क्रिएट नहीं की. ये बात याद रखें, despite the zulm that you and I might be saying. And मैं बार बार एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना मैं ज़रूर आपको अपना स्टैंस भी बता देता, ठीक है. बट आई एम जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इसलिए मुझे पता भी नहीं होता. बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर इस मुल्क को और मुझे और आपको नवाजना होना, तो अल्लाह ताला बिल्कुल किसी सतह पे भी किसी पॉलिटिकल लीडर के मोहताज नहीं, ना किसी आर्मी चीफ के मोहताज है, ना किसी जज के फैसले के मोहताज है, ना ही किसी IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे के मोहताज है. डीप डाउन इनसाइड अल्लाह ताला मुझे और आपको देखना चाहते हैं, द मैसेज इटसेल्फ, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. तो मुझे आपको ब्लेम गेम को छोड़ना है और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर मेहनत करनी है, अपनी ज़ात पर मेहनत करनी है. And you will see we will start building up, healthier communities. And you will see there is a lot to cherish about in this country still, in this ummah still, because of the blessings that Allah has given to me and you. There is a lot to cherish about, in every sense of the word, right? And you also have to understand that hard economic times, okay, can be also looked at from a very different perspective. I remember initially जब मैं दीन की तरफ आया था, last thing that I will say and then end with a story. तो my parents were not that on board उस वक्त. थोड़ा सा वो मौलवी हुलिया से तो हर कोई परेशान होता है. तो a friend of mine said this to me, and just in a passing way, he said, why are you worried? The notion of your parents trying to, not being happy with you, stopping you, this goes back to the nisbat of the Sahaba Karam. The Sahaba were opposed by Rasulullah, by their families. So shouldn't you be proud of the fact? So, if economic times are hard, so this is a nisbat that goes back to our Prophet. Didn't he live through hard economic times? Didn't the Muslims go through so much in Shabi Abi Talib? Didn't Bilal cry for food and water and nobody gave him anything? So this is a nisbat that goes back to that part. So if our intention is right, इस भूख और इस परेशानी और फकर को भी अल्लाह ताला रिवॉर्ड करे हर एतबार से. एंड रही बात इसकी कि हम इससे घबरा के कोई उल्टी सीधी हरकत करें, तो वो कुरान की आयत क्या कह रही है? अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, कि शैतान जो है वो आपको डराता है किससे? फ़क्र से. It is he who threatens you, scares you with poverty. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, and he pushes you towards, orders you to immorality. वल्लाहु अल्लाह, इतना ज़बरदस्त है ना. अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र वयअमुरुकुम बिल-फ़हशा. शैतान ये दो काम करता है, फ़क्र से डराता है और फहाशी की तरफ आपको हुक्म देता है. वल्लाहु, और अल्लाह क्या करते हैं? याइदुकुम मग़फ़िरा. अल्लाह ताला जो है क्या कर रहे हैं? ही प्रॉमिसेस यू फॉरगिवनेस, ठीक है. मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ल, एंड हिज फ़ज़ल एंड हिज बाउंटी. वल्लाहु वासिउन अलीम. तो हमने शैतान की साइड पे होना है या अल्लाह की साइड पे होना, ये आपकी मेरी चॉइस है. तो इब्राहिम अदम के बारे में आता है कि वो एक शख्स के साथ बैठे हुए थे जो बहुत शिकायत कर रहा था अबाउट हाउ लिटिल मीन्स ही हैड, राइट, कि उसके पास कितना कम वसाइल हैं और कितनी बड़ी फैमिली, कितने हालात मुश्किल हैं. अ स्टैंडर्ड कंप्लेन दैट me and you can have.
And there's technically no harm. But the Sheikh, to explain to this person, he said to him, you know what? I have a solution for you. अपने घर जाओ, and whoever in your house is not provided by Allah subhanahu wa ta'ala, उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा. उसको, जिसको भी अल्लाह रिस्क नहीं दे रहा ना तुम्हारे घर में, वो मुझे दे दो, मैं उसको वो कर दूँगा. तो कहते हैं कि इमीडिएटली वो शख्स जो है ना, वो खामोश हो गया और उसको बात समझ आ गई कि ये जो हमने अपने कंधों पे सबकी टेंशन उठाई हुई है ना, ये अल्लाह की मखलूक है. इनको अल्लाह अता कर रहे हैं, और इनको क्या, मुझे भी अल्लाह ही अता कर रहे हैं. तो मुझे क्यों परेशान होने की ज़रूरत है? मुझे बस अपनी एफर्ट पूरी करने की ज़रूरत है, और अपने आमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला से मांगने की ज़रूरत है. एंड ये मेरा वादा नहीं है, ये कुरान और हदीस का वादा है कि अगर हम अपने अंदर ये गिना पैदा कर लें और ये बिलीफ पैदा कर लें जो कुरान हमसे चाह रहा है ना, ठीक है, कोई दुनिया की ताकत मुसलमानों को या किसी कौम या मुल्क को जिसमें ये हो रोक नहीं सकती. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से और इन चीज़ों से असल प्रॉब्लम मेरे और आपके आमाल और हमारी अपनी सोच की कमी है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल हालात से बाहर निकालें. अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकें, अपने आमाल को दुरुस्त कर सकें. अल्लाह हम सब की रिस्क में, हमारे अमल में बरकत अता फ़रमाए. व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हान रब्बियल वहाब. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. ए अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से जो मुल्क पे हालात हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, ए अल्लाह इन तमाम को दूर कर दीजिए. मेरे मौला, हम तेरे इकरारी मुजरिम हैं, तेरे घर पे आए हैं, तुझे राज़ी करने आए हैं, तेरे दीन को सीखने आए हैं. ए अल्लाह, तू हमें कबूल फरमा ले, तू हमें कबूल फरमा ले. जितनी हमारी बदअमालियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, तू हमसे बेहतर जानता है. अल्लाह, हमारी इस्लाह फरमा दे. अल्लाह, जो बातें सुनी उन पे अमल करने का तौफीक अता फरमा दे. हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे. ए अल्लाह, आप राज़िक़ हैं, रज़्ज़ाक़ हैं, आप हमें रिज़्क़ अता करते हैं. हम दुनिया के असबाब में देखते रहते हैं. ए मेरे मौला, हमें बराह रास्त आपकी तरफ देख के लेने वाला बना दे, आपकी तरफ देख के लेने वाला बना दे. ए मेरे अल्लाह, हमें नमाज ऐसी पढ़ने वाला बना दे कि हमारी नमाज में हर मसले का हल हो, हमारी नमाज से तू राज़ी हो, हमारी नमाज हमारी आंखों की ठंडक हो. ए मेरे अल्लाह, आप हमें सिला रहमी करने वाला बना दीजिए, लोगों से जोड़ने वाला बना दीजिए. मेरे रब, तू हमें शुक्रगुजार बना दे, हमें शुक्रगुजार बना दे. अल्लाह, हकीकी बात यह है कि हम जब से इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह, पहले मिनट से लेके अब तक आपकी नेमतों में लिथड़े हुए हैं, आपके फजल में जी रहे हैं. फिर भी हम नाशुक्री करते हैं, हम गुनाह करते हैं, उसके ऊपर तकब्बुर करते हैं. मेरे रब, हम शर्मिंदा हैं, तेरे से माफ़ी मांगते हैं. ए अल्लाह, आप माफ़ फरमा दीजिए. ए अल्लाह, आपको माफ़ करना सजदा है. ए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए. ए अल्लाह, आइंदा आने वाले गुनाहों के लिए भी माफ़ कर दीजिए. और मेरे मौला, हम सब की ज़िंदगियों का रुख ऐसे फेर दीजिए कि हम नबी वाले रास्ते पर चल पड़ें, हम कुरान वाले रास्ते पर चल पड़ें, सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ें. और कभी भी शैतान अगर हमें इधर उधर भटकाए, ए अल्लाह, तू हिदायत वाला मामला फरमाना, तू करम फजल वाला मामला फरमाना. रब्बे करीम, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब है, हमें इसके अलावा कोई हकीकत मालूम नहीं. ए अल्लाह, इस फितने के दौर में तू हम फकीरों को छोड़ ना देना, तू हमें छोड़ ना देना. हमारे हाल पे रहम फरमा. अल्लाह, हम बेबस हैं, बिखरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं. ए अल्लाह, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है. ए अल्लाह, जैसे भी हैं, तेरे नबी की उम्मती हैं, तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, तेरे कुरान को देखने वाले हैं, वो कि उसको समझते नहीं, उससे दूर हैं, हमारी ज़िंदगी में गुनाह है. पर मेरे मौला, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे. ए अल्लाह, आप हमें कबूल कर लीजिए, इस दीन के लिए कबूल कर लीजिए, इस दीन के लिए कबूल कर लीजिए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.